जिन भक्तों का इस महीने जन्मदिन है, मंदिर सभा की तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। जिन भक्तों की इस महीने वेडिंग एनिवर्सरी है, उनको भी ज्ञान स्थल मंदिर सभा की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ਗਿਆਨ ਸਲ ਮੰਦਰ ਸਭਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਰਾਏ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ 333ਵਾਂ ਮਾਸਿਕ ਵਿਧਵਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਸਮਾਰੋਹ ਅੱਜ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰ ਮੰਦਰ ਸਭਾ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਬਜਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 350 ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਅਪਾਹਿਜ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਈਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮੰਦਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੌਬੀ ਕੋਰਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਸ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠ ਸਤਲੁਜ ਕਲੱਬ ਦੀ ਕਾਰਿਆਕਰਨੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ MLA ਓਲਾ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੂਰਵ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਦਵੇਜਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਵਪਾਰੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਰਕੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਸਮਾਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 333ਵਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਸਮਾਰੋਹ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੂਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਸਮਾਰੋਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਣਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨ ਕਿ ਮੰਦਰ ਸਭਾ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਲਾਲ ਬਜਾਜ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਕੇਸ਼ ਬਜਾਜ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ 333ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਔਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ। कीर्तन करके ही है हर्षित जगत पाए अनुराग भी, असुर भागते डर के दिशाओं में उचित है करे नमन सिद्ध सब तुम्हें। ब्रह्मा के आदि बड़े सबसे हो नमस्कार क्यों ना करें आपको, सत्या असत्या परे इससे भी वो सब कुछ प्रभु आप बस आप ही। आदि देव भगवन सनातन भी हो, परम धाम सबको सहारा भी दो, वो सर्वज्ञ तुम जानने योग्य भी, समाया तुम्हीं में जगत ये सभी। यम वायु अग्नि वरुण चांद तुम, पिता ब्रह्मा के और हो ब्रह्मा भी तुम। नमस्कार तुमको हजारों ही बार, नमस्कार भगवान है फिर नमस्कार, नमस्कार आगे व पीछे से भी,
पेज निकालिए, 6 नंबर पेज, 6 नंबर। हिंदी में है, हिंदी में, संस्कृत को छोड़ के हिंदी में नमस्कार लिखो। आगे व पीछे से भी सब और से है नमस्कार ही, तुम्ही में है सृष्टि ये सारी प्रभु, सब कुछ सृष्टि के तुम ही तो हो। माना प्रभु तुमको अपना सखा, न प्रभाव जाना कभी आपका, प्रेम और परमाद में भर के ही कहा कुछ भी मैंने हो तुमसे कभी, सोते जागते खाते हंसते हुए, अकेले किसी के भी या सामने, अपमान मुझसे है कुछ भी हुआ, भगवान क्षमा उसकी हूँ चाहता। चराचर जगत के पिता गया हमें कहते जितनी इनको जुड़ता है उतनी हम अब एक दूसरे को हंस के कहना, नित खुशियाँ महाराज तेरे घर, नित खुशियाँ, नित खुशियाँ महाराज तेरे घर, नित खुशियाँ, नित खुशियाँ महाराज तेरे घर, नित खुशियाँ। नित खुशियाँ महाराज तेरे घर, नित खुशियाँ। भाई मुख से बोलिए, हम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आप हमें दीजिए। हमने भी 1 घंटा पाठ किया है, कहते ईमानदारी से पाठ करो तो आशीर्वाद लगता है, तो इसलिए एक दूसरे को आशीर्वाद दीजिए। और नित खुशियाँ महाराज तेरे घर, नित खुशियाँ। गाएं भगवती गीता माता की, गीता माता की, भगवती गीता माता की, गीता माता की, भगवती गीता माता की, आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की, आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। कर्म भक्ति और ज्ञान की धारा, धर्म भक्ति और ज्ञान की धारा, धोवे मन का कलमश सारा, धोवे मन का कलमश सारा, त्रिवेणी संगम ये प्यारा, त्रिवेणी संगम ये प्यारा, आओ करे स्नान पाए कृपा सुखदाता की, आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की, आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की। जीवन का उत्थान है गीता, जीवन का उत्थान है गीता, भारत की पहचान है गीता, भारत की पहचान है गीता, मानवता की मुस्कान है गीता, मानवता की मुस्कान है गीता, राग देश भव वैनाशक दुख शोक तराता की, आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की, आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। समता त्याग सिखावन हारी, समता त्याग सिखावन हारी, योगेश्वर की वाणी न्यारी, योगेश्वर की वाणी न्यारी, वात्सल्य में गीता प्यारी, वात्सल्य में गीता प्यारी, प्रेम करुण मुदिता अद्भुत आनंद प्रदाता की, आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की, आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। करुणा महिमा करुणा कर दो, करुणा महिमा करुणा कर दो, श्री कृष्ण कृपा का ऐसा वर दो, कृष्ण कृपा का ऐसा वर दो, रोम रोम में भाव ये भर दो, रोम रोम में भाव ये भर दो, सुख दुख मान अपमान सभी है लीला विधाता की, आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की, आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। सभी सुखी हो सभी निरोगी, सभी सुखी हो सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, मंगलमय हो सबका जीवन, मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मेरे नाथ मेरे नाथ मैं आपको भूलूं आपने नहीं, हमारे पीछे बोलिए, हम आप साथ साथ बोलते हैं, बोलिए। मेरे नाथ मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मेरे नाथ मैं आपसे
दूर ना रहूं, मैं आपसे दूर ना रहूं, आप भी मुझसे दूर ना रहें, आप भी मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ आप अपनी कृपा आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखना। सदा सब पर बनाए रखना। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गौ सेवा और गीता पाठ, गौ सेवा और गीता पाठ, नित्य नियम से मंत्र जाप, नित्य नियम से मंत्र जाप, जपते रहो जब तक है श्वास, जपते रहो जब तक है श्वास, जपते रहो जब तक है श्वास। जो कुछ किया सो आपने आप ही करने योग, ना हम कुछ कर सके ना ही करने योग। शिव समान दाता नहीं भगत समान हनुमान। मैं ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਭਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ 70 ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਫੌਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦੇ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਯਾਰ ਬਾਕੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਫੌਜੀ ਭਾਈ ਆਪ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨ 'ਚ 4-5 ਮਰੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਈ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ 20-25 ਸਾਲ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸਰ ਦੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਹਰਕੇਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਾਂ। ਐਜ ਏ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਦਰਸ ਡੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਨਾ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਮਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਤੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨਾ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਂ ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਲੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦਿਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ, ਫੀਡ ਕਰਾਉਣੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਅੱਖ ਜੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ, 100 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਮਦਦ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਜ਼ ਏ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਰੋਲ, ਮੈਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਗਰਗ ਜੀ ਦੇ ਛੱਤਰ ਛਾਇਆ नीचे जो भी हो मेरा हुक्म लगाएंगे, आई विल सी। थैंक यू सर। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने लेडीज़ के बारे में जो चीज़ बताई है वो सही साबित हुई है आज तक, और मैं आभारी हूँ आज के हमारे मुख्य मेहमान सत्कार जो गुरिंदर सिंह गोरकी जी का, जो कि व्यवसाय में प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं और हिंदुस्तान के साथ साथ
दुबई में भी अपना कारोबार चलाते हैं और ये काफ़ी लंबे समय से ज्ञान स्थल मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं। जब हम एक छोटा सा कार्यक्रम मंदिर प्रांगण में करते थे तब से ये इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं और मैं आज के इस कार्यक्रम में इनकी इतनी ही सेवा लगाऊंगा कि अगला जो कार्यक्रम है आपकी तरफ से यहाँ पर आयोजित किया जाए। धन्यवाद गोडकी जी। और ये जो समाज सेवा का कार्य है, जब तक हम किसी के मुखार बिन से कहलवा नहीं लेते कि ये आपका कार्यक्रम है, तब तक ये सफल नहीं होता है। और आज के इस कार्यक्रम में विशेष तौर से आदरणीय संजय कपूर जी हमारे बीच हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं सतलुज क्लब के। उनसे गुजारिश करूंगा कि वो कृपया मंच पर आएँ और अपने केवल और केवल 2 मिनट का समय है। संजय कपूर जी, वाइस प्रेसिडेंट सतलुज क्लब लुधियाना। सबसे पहले तो मैं ज्ञान स्थल की मंदिर की पूरी टीम को पूरी बधाई दूंगा जो ये प्रोग्राम आयोजन करते हैं और ऐसे पुण्य के जो काम करते हैं ये, और हमारी तरफ से इनको जो भी साथ चाहिए हम इनके साथ 24 घंटे खड़े हैं। और आज मदर्स डे भी है, वो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि माताओं के लिए कहते जन्नी जने तक भगत जन जब दातन जा सू नहीं तो जन्नी बाज रहे काहे गवावे नूर। ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਖੜੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਸੇਵਾ ਲਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। आज सतलुज क्लब हमारे लिए एक केवट बन के आए हैं और ज्ञान स्थल मंदिर के ये समाज सेवा का कार्य उन्हीं के माध्यम से आज हम आयोजित कर रहे हैं। इसी बीच डीएमसी से भी हमारे पास महानुभाव आए हैं, उनका भी स्वागत है। और भूषण गोरा गुप्ता जी इस समय मंच पर, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी 2 मिनट के लिए। डीएमसी से राघव सूद जी हमारे बीच हैं, उनका भी स्वागत है। उनसे गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। और मंच गोरा गुप्ता। जय श्री राम, भारत माता की जय। इस ज्ञान स्थल के इस पवित्र प्रांगण में आज 333वां मासिक वितरण समारोह जो मासिक विधवाओं को और जरूरतमंद महिलाओं को दिया जाता है। और आज के मेन इनवाइटेड हैं हमारे शहर के प्रसिद्ध सतलुज क्लब की पूरी टीम, जिसमें डॉक्टर आहूजा जी जनरल सेक्रेटरी, डॉक्टर शिव कुमार गुप्ता जी, समाज सेवी अश्विनी गर्ग जी, वाइस प्रेसिडेंट संजय कपूर जी, दर्शन लड्डू जी, मेरे छोटे भाई बिंद्रा जी, केपी वालिया जी फाइनेंस सेक्रेटरी, जिनके पास असली खजाना है जिसकी हमारे को जरूरत भी बहुत है, बिदुर जी और मेरी छोटी बहन नीना सिंगला जी, सबका जहां आने का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। जैसे आपको पता तो लग ही गया है कि जहां पर टोटल ही सेवा का कार्य चलता है, ये प्रोग्राम खत्म होता है तो अगले प्रोग्राम की व्यू रखना बनानी शुरू हो जाती है। 400 महिलाओं को राशन वितरण देना, जो राशन वितरण आपके सामने डिस्प्ले है, मेरे ख्याल सबको दिखा दिया गया है। जो लेट आए हैं उनको भी दिखा दिया जाएगा। इसकी पर कोष 2000 रुपये पर पर्सन है। आप देखो कि ये सारी ज्ञान स्थल की टोटल टीम कितनी कड़ी मेहनत करती है, तब ये महीने में पूरा होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबसे भी ऐसा ही सहयोग मिलेगा, क्योंकि ये क्लब शहर का एक माना हुआ और क्या कहते हैं शाहूकारों का क्लब है, कहने से गुरेज नहीं करूंगा। इस संस्था को जहां आप बैठे हैं, जहां पे इस जगह पे 2 AC की जरूरत है। मैं गुम्बर साहब को कई बार गुजारिश कर चुका हूं, कहता भैया बेटा फंड नहीं है, क्या करूं, फंड की कमी है। फंड है तो मैं लगा दूंगा। तो मैं सबसे और आपके सहयोग से कामना करता हूं कि आप अपनी कोई भी हर चीज़ की कंट्रीब्यूशन इस समय देके जाएं, जिससे ये सेवा का कार्य चलता है। वैसे सेवा के कार्य को कभी कमी नहीं आती है। आज मदर डे है, सबको मातृ दिवस की बहुत बहुत बधाई, क्योंकि हम सबका जन्म एक माँ की कोख से ही हुआ है, चाहे हम हैं चाहे आप सब हैं। सबको मदर डे की बहुत बहुत बधाई। मेरी सबसे फिर गुजारिश, अपनी सेवा ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार की तरफ से, सहयोगियों की तरफ से देके जाएं, जिससे ये संस्था का काम रूबरू ऐसे ही चलता रहे। धन्यवाद। हुए सतलुज क्लब के
जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर आशीष आहूजा जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आएं और अपने मन के विचार रखें। ज्ञान स्थल मंदिर लगातार 1997 से ये सेवा कार्य करती आ रही है। हर महीने 10 लाख रुपए का खर्चा होता है, जहां पर 400 ज़रूरतमंद परिवारों को आटा, दाल, चीनी, चावल, हल्दी, मिर्च, मसालों की ये जो स्टॉल आप देख रहे हैं, यहाँ तक कि हरी सब्जियां भी उनको डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। और ऊपर हॉबी कोर्स चल रहे हैं, सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग, ब्यूटिशियन और कंप्यूटर सेंटर के साथ साथ इस बार एक कंप्यूटर सेंटर हमने लड़कों के लिए अलग से खुलवाया है। और आपका यहाँ आना हमारे सौभाग्य के लिए सौभाग्य की बात है। और डॉक्टर आशीष आहूजा जी सतलुज क्लब में बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीत कर आगे आए हैं। मैं इनको बहुत सारी बधाई देता हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूं, मैं अपने बड़े भाई हरकेश मित्तल जो लुधियाना सतलुज क्लब के कल्चर सेक्रेटरी हैं, सेकंड बार इलेक्टेड हुए हैं बहुत बड़े मार्जिन से, क्योंकि लास्ट ईयर उन्होंने काम भी बहुत अच्छे कल्चर के किए हैं। इनका बहुत बहुत आभार, सॉरी फॉर डैट। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर आशीष आहूजा जी से, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं सतलुज क्लब लुधियाना। सबको मेरा नमस्ते, सत श्री अकाल, जय श्री राम। मैं डॉक्टर आशीष आहूजा, मैं सर्जन हूँ डीएमसी हॉस्पिटल में, और मैं हरकेश मित्तल जी का और अश्विनी गर्ग जी का, जो दर्शन बवेजा जी, जो एक ज़रिया बने हैं कि हम यहाँ पे आके देख सकें कि ये कितने अच्छे काम कर रहे हैं। और मैं इनसे गुजारिश करूँगा और भगवान से प्रार्थना करूँगा कि ये काम हमेशा करते रहें समाज की भलाई के लिए। मैं जो भी कंट्रीब्यूशन कर सकूँगा प्रोफेशनली अपने काम के ज़रिए, जैसे कि मेरे छोटे ब्रदर हैं शिव गुप्ता जी, ये बच्चों के डॉक्टर हैं, तो ये एक कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। हमारे जितने यहाँ पे फैमिलीज़ आई हुई हैं, किसी के बच्चे को कुछ दिक्कत होती है, कुछ भी होगा, तो मैं शिव गुप्ता जी से गुजारिश करूँगा कि ये बच्चों के डॉक्टर हैं, तो बच्चों के लिए जो भी फ्री कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं प्रोफेशनली। इनका एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जो कि सत्यम हॉस्पिटल के नाम से है, नज़दीक में ही है शायद। तो आप सारे इस संस्था का नाम लेके वहाँ पे आ सकते हैं, ताकि बच्चों को कभी कोई भी तकलीफ़ हो तो सतलुज क्लब की तरफ से शिव गुप्ता जी आपकी मदद करेंगे। हमारे बाकी फैमिली मेम्बर्स भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट संजय कपूर जी, बिंद्रा जी, वालिया जी जो कि हमारे मेन ट्रेजरर हैं, और विदुर खोसला मेरे यंगर ब्रदर, टीना जी, और हरकेश मित्तल जी तो खैर है ही हैं यहाँ पे, और सुबोध बातिश जी नहीं दिख रहे मेरे को, और सुलभा जी भी नहीं दिख रहे, वो कुछ मीटिंग में लगे। हाँ जी, तो देव जी भी नहीं है। तो हम जो भी कंट्रीब्यूट कर सकेंगे जी, मैं तो खैर ऑपरेशन का माहिर हूँ, मेरी चलो ज़रूरत ना पड़े किसी को, लेकिन बच्चों के लिए कुछ भी होगा तो शिव गुप्ता जी ने आज हाँ कर दी है। कोई भी बच्चों की तकलीफ़ कुछ भी, ये आपकी मदद करेंगे, और इनको लगेगा कि जहाँ पे इनकी मदद जितनी लिमिट तक कर सकते हैं उसके आगे कभी डीएमसी के अंदर करनी होगी तो मैं पहले भी करता आया हूँ, अभी भी करूँगा। ठीक है जी, और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर आशीष। मेरी तरफ से जो भी ज्ञान स्थल मंदिर की कमेटी की तरफ से जो भी बच्चा मेरे पास आएगा, मेरी कंसल्टेशन फ्री रहेगी। मंच पर डॉक्टर साहिबान हैं जो माँ के बाद इस दुनिया में रखवाले होते हैं। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें इतनी बड़ी सपोर्ट दी है। और जहाँ किसी को घर चाहिए, दुकान चाहिए, कोठी बंगला चाहिए, वो गुरिंदर सिंह गोरकी के पास अपनी अरदास लगा सकते हैं। और इस समय ये हमारे बीच हैं जो कभी लुधियाना में और कई बार दुबई में रहते हैं, तो इनसे मुलाकात करने के लिए एयरलाइंस पे पता करना पड़ता है। गोरकी जी की कोई टिकट बुक तो नहीं है, तो मैं गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर आए और अपने विचार रखें। ऐसे महानुभाव जो समाज सेवा की कई संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं और ज्ञान स्थल में है गुरिंदर सिंह जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਟਫ ਟਾਈਮ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ,
ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਆਰਮ ਫੋਰਸਿਸ ਨਾਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੇਫ ਲੋਕ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਦਰਸ ਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜੁੜਿਆ ਅੱਜ 15-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਇਹ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਧਾਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। मैं आभारी हूँ गुरिंदर सिंह जी का, जिन्होंने अपने शब्दों में कहा है कि डे बाय डे ये संस्था ग्रो कर रही है और ये आप लोगों का सहयोग है, जो निष्काम भाव से आप लोग सेवा कर रहे हैं। और मैं सतलुज क्लब के सिमरनपाल सिंह बिंद्रा जी से अनुरोध करूंगा कि बहुत सारे दर्शकों की डिमांड है कि आप मंच पर आएँ और बोलें। सतलुज क्लब की तरफ से सिमरनपाल सिंह बिंद्रा जी। ऐसा है बिंद्रा साहब, जंग कल्चर तो ज़्यादा बोलता है, तभी तो हम सब आगे बढ़ेंगे। आपको देख के तो सभी बोलने हो कि आइए प्लीज़। और उसके पश्चात चार्टर्ड अकाउंटेंट KPS वालिया जी, जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी हैं सतलुज क्लब। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਜੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। बहुत धन्यवाद। जिनके पास कुबेर का खजाना है, सतलुज क्लब के फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बिल्कुल हिसाब किताब के साथ चलते हैं। और KPS वालिया जिनका नाम है, बड़े ही प्रेम और श्रद्धा के साथ आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। जब से ये आए हैं तब से ही अपने चेहरे पर एक मधुर मुस्कान लिए हुए हैं और इनके दिल में एक जज्बात है, उसको मैं शब्दों तक लाना चाहूँगा। आदरणीय KPS वालिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया मेरे बारे में। ये मेरा दूसरा विज़िट है यहाँ पे, आपको शायद याद नहीं होगा। मेरा ख्याल है 6 या 7 साल पहले आया था, क्योंकि मेरी विजय चोपड़ा जी पंजाब केसरी ग्रुप के साथ मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं उनका कंसल्टेंट रहा हूँ। 10 साल उनके साथ मैं अटैच था एज ए कंसल्टेंट। फिर अपने रुझानों के चक्कर में मैं फिर यहाँ रहा। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने हमें मौका दिया आपके साथ कुछ शब्द साझे करने के लिए और आपके साथ बैठने का। और आज जो मदर्स डे पे जो आज आपने ये कार्यक्रम किया है, ये तो मतलब लाजवाब है। ये तो मेरी भी आंखें खुल गई हैं। और मैं देखो ज़्यादा काम तो नहीं कर सकता, इतना मैं आपको ज़रूर प्रॉमिस करता हूँ कि जो बच्चे अच्छे पढ़े लिखे हैं आपके मंदिर से निकलेंगे, एटलीस्ट ग्रेजुएट हों प्लस जिन्होंने कंप्यूटर के कोर्स किए हुए हैं, पूरा जोर लगाऊंगा कि उनको सबको जॉब मिले। राकेश बजाज जी की ड्यूटी होगी इसके बारे में, आपने मेरे साथ इन टच रहना है। और मैं ये नहीं कह रहा कि अगर मैं मंच पे खड़ा हूँ और मैं ये करके बाद में भूल जाऊँगा। इसके बाद आपको मुझे कभी यहाँ पे बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं यहाँ पे खुद आया करूँगा। ये राकेश बजाज की ड्यूटी है। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर, आप लोगों ने हमें बुलाया और आप लोगों के साथ बैठे, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। धन्यवाद। ये कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। सिर्फ 2 या 3 मिनट में ये कार्यक्रम समापन हो जाएगा। और ज्ञान स्थल मंदिर की तरफ से आदरणीय बिट्टू गुंबर जी सभी का धन्यवाद करेंगे। श्री बिट्टू गुंबर जी। जय श्री। मैं श्री ज्ञान स्थल मंदिर सभा वालों आए हुए सारे ही मेहमानों का
ਸਤਲੁਜ ਕਲੱਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ 2 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਗਰਗ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਬਵੇਜਾ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਜਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਰਮੇਸ਼ ਗੁੰਬਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਨਰੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ, ਰਾਜ ਵਰਮਾ ਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਕਪੂਰ ਜੀ, ਰਕੇਸ਼ ਬਜਾਜ ਜੀ, ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਹੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਾਰਿਆ ਜੋ 27-28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में हॉबी कोर्स के विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र बांटे जाएंगे। मैं सतलुज क्लब के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर आशीष आहूजा जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच के नीचे चलें, और साथ में अश्विनी गर्ग जी और हमारे विशेष मेहमान गोरकी जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी साथ में चल कर के ये सर्टिफिकेट बच्चों को बांटेंगे। उसके पश्चात आई हुई पूरी टीम को मंदिर सभा की तरफ से विशेष मोमेंटो दिया जाएगा। बारी बारी से आप मंच पर जाएंगे और बच्चों को ये प्रमाण पत्र भेंट करेंगी। तजिंदर कौर, जिन्होंने ब्यूटिशियन में साल 2024 और 25 में ए ग्रेड में ये कोर्स कंप्लीट किया है, उसको ज्ञान स्थल मंदिर की तरफ से ये प्रमाण पत्र भेंट किया जाएगा। और प्रमाण पत्र भेंट करने के लिए ज्ञान स्थल मंदिर के प्रधान परवीन बजाज जी, अश्विनी गर्ग जी, आदरणीय दर्शन लाल बवेजा जी और सतलुज क्लब की तरफ से जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर आशीष आहूजा जी और विशेष तौर से टीना सिंगला जी, जो कि लेडीज़ एग्जीक्यूटिव मेंबर है सतलुज क्लब की, वो बच्ची के गले में ये मेडल पहनाएंगे। और विशेष तौर से हमारे डॉक्टर आशीष आहूजा जी, दर्शन लाल बवेजा जी, अश्विनी गर्ग जी मिलकर के ये बच्ची को प्रमाण पत्र भेंट करेंगे। अगला प्रमाण पत्र सानिया, इस विद्यार्थी ने भी 24 और 25 में ब्यूटिशियन सेंटर से ये कोर्स कंप्लीट किया है। और सत्कार जो गुरिंदर सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो अवार्ड सेरेमनी में भाग लेने के लिए आगे आ जाएं। ये परंपरा रहती है कि बारी बारी से एक एक मेहमान अवार्ड सेरेमनी में शामिल होकर बच्चों को आशीर्वाद देंगे। अगले अवार्ड सेरेमनी के लिए KPS वालिया जी आगे आ जाएंगे। और मनप्रीत कौर, जिस विद्यार्थी ने फैशन डिज़ाइनिंग में ये कोर्स कंप्लीट किया है, उसको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। साथ में रहेंगे हरकेश मित्तल जी, क्योंकि हमारे विद्यार्थी ये हॉबी कोर्स से कोर्स कंप्लीट करने के पश्चात एक टेस्ट लिया जाता है, उसके पश्चात ये प्रमाण पत्र उनको भेंट किया जाता है। अगली विद्यार्थी है पार्वती, और इसने भी ब्यूटिशियन सेंटर में ये कोर्स कंप्लीट किया है। और विशेष तौर से हमारे टीचर साहिबान ने इनके टेस्ट लिए और ये सफल हुई, जिसके पश्चात इसको ये प्रमाण पत्र भेंट किया जा रहा है। डॉक्टर सिमरनपाल सिंह बिंद्रा जी, उनसे भी अनुरोध है कि वो अवार्ड सेरेमनी में भाग लें। और साथ ही डॉक्टर शिव गुप्ता जी आ जाएंगे। और अगली विद्यार्थी है रिया, जो कि बेसिक अकाउंट विद टैली टाइपिंग में इन्होंने कोर्स कंप्लीट किया है। और श्री विदर खोसला जी और हमारे विशेष मेहमान संजय कपूर जी सभी मिलकर के ग्रुप फोटो के लिए आगे आ जाएंगे। सतलुज क्लब की पूरी एग्जीक्यूटिव टीम मंच पर आकर के हमारे इन विद्यार्थियों के साथ एक ग्रुप फोटो करवाएंगे। डॉक्टर आशीष आहूजा जी, टीना सिंगला जी,
वंशिका सिंगला जो कि हमारे आज के विशेष मेहमान हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी बच्चों के साथ इस ग्रुप फोटो में पार्टिसिपेट करेंगे। टीना सिंगला जी भी आगे आ जाएं हमारे टीचर साहिबान के पास। ये वो लम्हे हैं जब जीवन में आप किसी सेवा के मुकाम पर जाते हैं और वहाँ पर आपका एक ग्रुप फोटो लिया जाता है और ये सदा सदा के लिए याद दिलवाती हैं। और आप एक ऐसे सेवादार को सम्मानित करेंगे जो रोहित गुप्ता हैं, हमारे बीच आए हैं। इन्होंने ज्ञान स्थल मंदिर की मेंबरशिप ली है, उनको सतलुज क्लब की टीम सम्मानित करेगी। रोहित गुप्ता जी, आदरणीय दर्शनलाल बवेजा जी से अनुरोध है कि आए हुए मेहमानों का सम्मान करें। ये रोहित गुप्ता जी जो कि सिवा लाइन से आए हैं और ज्ञान स्थल मंदिर से इन्होंने ये मेंबरशिप ली है। अगला सम्मान एडवोकेट पुनीत गुप्ता जी, जिन्होंने ज्ञान स्थल मंदिर की ये सेवा ली है हर महीने डोनेशन देने की। और ज्ञान स्थल मंदिर की तरफ से सतलुज क्लब की नई कार्यकारिणी के श्री विदुर खोसला जी को मंदिर सभा की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है, जिसमें दर्शनलाल बवेजा जी और गोरकी जी, अश्विनी गर्ग जी, परवीन बजाज जी मिलकर उनको सम्मानित करेंगे। इस समय विदुर खोसला जी जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं सतलुज क्लब कार्यकारिणी टीम के, और हमारे बीच विशेष मेहमान विधायक सरदार दलजीत सिंह भोला गरेवाल जी पहुंच चुके हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। डॉक्टर शिव गुप्ता जी सतलुज क्लब के, डॉक्टर शिव गुप्ता जी एग्जीक्यूटिव मेंबर, दर्शनलाल बवेजा जी, गरेवाल साहब, गोरकी जी मिलकर उनका सम्मान करेंगे। डॉक्टर शिव गुप्ता जी और मंदिर सभा की चेयरपर्सन सरला चोपड़ा जी से अनुरोध करूंगा कि सतलुज क्लब की एग्जीक्यूटिव मेंबर श्रीमती टीना सिंगला जी का सम्मान करें। सरला चोपड़ा जी मंदिर सभा की तरफ से सतलुज क्लब की एग्जीक्यूटिव मेंबर टीना सिंगला जी का सम्मान करते हुए श्री हरकेश मित्तल जी कल्चरल सेक्रेटरी सतलुज क्लब लुधियाना, ज्ञान स्थल मंदिर की तरफ से भूषण गौरा गुप्ता जी, परवीन बजाज जी, डॉक्टर आशीष आहूजा जी, श्री दर्शनलाल बवेजा जी, हरकेश मित्तल जी का सम्मान करते हुए केपीएस वालिया जी चार्टर्ड अकाउंटेंट और सतलुज क्लब के फाइनेंस सेक्रेटरी। इस समय चार्टर्ड अकाउंटेंट केपीएस वालिया जी जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी हैं सतलुज क्लब लुधियाना के, उनको सम्मानित किया जा रहा है। और अगला सम्मान सिमरनपाल सिंह बिंद्रा जी जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं सतलुज क्लब लुधियाना। आप सभी को ज्ञान स्थल मंदिर की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, जो आपने सतलुज क्लब के 2025 के चुनावों में ये मुकाम हासिल किया है। श्री संजय कपूर जी वाइस प्रेसिडेंट सतलुज क्लब लुधियाना, आप सभी को ज्ञान स्थल मंदिर की तरफ से शुभकामनाएं, जो आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और इस संस्था के जनरल सेक्रेटरी रेस्पेक्टेड डॉक्टर आशीष आहूजा जी, जोरदार तालियों के साथ इनका यहाँ अभिवादन करें। ये पूरी टीम को लेकर के यहाँ पर आए हैं और डॉक्टर आशीष आहूजा जी जो कि सर्जन हैं और बहुत बड़े मार्जिन के साथ लुधियाना के सतलुज क्लब के 2025 के चुनावों में जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पर हाजिर हुए हैं। उन आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर सतलुज क्लब की टीम यहाँ हाजिर है तो एक ग्रुप फोटो के लिए आगे आ जाएगी। गुरदासपुर से विशेष तौर से
आज के इस कार्यक्रम में विशेष तौर से गुरदासपुर से आए हमारे महानुभाव जिनका ये सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है, आदरणीय राजेश अग्रवाल जी। और आज के हमारे मुख्य मेहमान सरदार दलजीत सिंह भोला गरेवाल जी विधायक साहब। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय श्री दर्शनलाल बवेजा जी का सम्मान करेंगे। आदरणीय दर्शनलाल बवेजा जी के बारे में जैसे जाना जाता है कि जिस संस्था के ये ओहदेदार बनते हैं वो संस्था जीवन भर चलती रहती है और इनका एक ही उद्देश्य होता है कि जहाँ पर भी जाओ वहाँ खुशियाँ बांट करके आओ, वहाँ के दुख दर्द मिटा करके आओ। ये अपनी धन दौलत के साथ और अपने प्यार और मोहब्बत के साथ वहाँ के लोगों का दिल जीत लेते हैं। और बहुत ही सत्कारयोग गुरिंदर सिंह गोरकी जी जो कि उद्योगपति हैं, लोगों को रहने के लिए घर, कारोबार चलाने के लिए दुकान, कोठी और बंगले की चाहत रखने वालों को उसके लिए वो ज़मीन मुहैया करवाते हैं। बहुत ही आदरणीय और सत्कारयोग सरदार गुरिंदर सिंह गोरकी जी, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम में घोषणा की है कि अगला कार्यक्रम इनके परिवार की तरफ से यहाँ आयोजित किया जाएगा। मैं आम आदमी पार्टी के विधायक सत्कारयोग सरदार दलजीत सिंह भोला जी, जिन्होंने जनता की सेवा के लिए दिन रात एक की और लगातार सेवा करते हुए जनता के दिलों पर राज कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक सरदार दलजीत सिंह भोला आज हमारे इस मंच पर हैं और उनका सम्मान मंदिर सभा के तमाम सदस्य मिलकर करते हुए मैं परमपिता परमात्मा से दुआ करता हूं कि ये लगातार इसी तरह सेवा करते हुए जनता के प्यार को प्राप्त करते रहें और उनके दिलों में राज करते हुए इसी तरह से सेवा कार्यों को निभाते रहें और परमात्मा इनको लंबी आयु दे और अच्छा स्वास्थ्य दे। अश्विनी गर्ग जी का सम्मान मंदिर कमेटी की तरफ से और आम आदमी पार्टी के विधायक सरदार दलजीत सिंह गरेवाल जी अपने कर कमलों से इनकी समाज प्रति सेवाओं को देखते हुए उनको विशेष पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान करते हुए सेवा के कार्य जितनी देर तक चलाए जाए वो कम रहते हैं, क्योंकि सेवा करते हुए जब इंसान एक मुकाम पर पहुंच जाता है तो सेवा उसके हाथों खुद ब खुद होती रहती है। और अश्विनी गर्ग जी अनेकों संस्थाओं के साथ जुड़कर समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए और दानवीर करण की उपाधि हासिल किए हुए और जहाँ पर भी ये जाते हैं उनके लिए तन मन धन से वहाँ अपना जीवन अर्पित करते हैं। रिस्पेक्टेड श्री अश्विनी गर्ग जी। राजनीति जगत में नामना कमाने वाले हमारे आज के विधायक सरदार दलजीत सिंह भोला जी मदर डे के अवसर पर आप सभी को संबोधन करेंगे। सत्कारयोग विधायक ਗਿਆਨ स्थल ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨ स्थल ਮੰਦਰ ਦੇ स्वर्गवासी श्री जगजीत बजाज जी, श्री राकेश बजाज जी और सारे ही सत्कारयोग डॉक्टर साहब, सारे सत्कारयोग और सारे प्रबंधक कमेटी के मैंबर,
ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਬਜਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਬਜਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਬਜਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਬਖਸ਼ਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਤੋਤ ਹੀ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਵੇਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ, ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਬਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸੇਵਾ ਵਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਚਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਮਦਦ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਤਾਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੂ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣੂਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਊਗਾ ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਉਹਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਲਦੇ ਪੋਸਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਡੁੰਗਾਰੀ ਬਣਨਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਿਹੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਪੂਤ ਜਿਹੜੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਿਹੱਤਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਦਲਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਣ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਮੁੜੇ, 2 ਦਿਨ ਨਾ ਮੁੜੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਕਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਥਾਣੇ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗੋਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਔਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜਾ ਤੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਉੱਥੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ਆ, ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਚਿੰਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਕੀੜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲਈ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੰਗ, ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਮੱਲੇ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਮੱਲਾ ਮਿਲ ਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਲੜਾਈ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਉਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਲ ਕੇ ਮਦਦ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਆਪਣੇ ਬਲਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਗੇ ਨਾ ਲਵੇ। ਤੇ ਔਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛਾਤੀ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਲੂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਹਿੰਦ। 333वां राशन वितरण समारोह जो कि समापन की ओर बढ़ रहा है, और पंजाब सरकार की तरफ से इस समय हमारे बीच लुधियाना से आम आदमी पार्टी के विधायक भोला जी हाजिरी लगवा रहे हैं, और ज्ञान स्थल मंदिर की पूरी टीम और समाज सेवा करने वाले सेवा के स्तंभ इस समय मेरे साथ हैं। प्रधान परवीन बजाज जी, महामंत्री रमेश कुंवर जी, आदरणीय दर्शन लाल बवेजा जी, अश्विनी गर्ग जी, अशोक गोयल जी, गुरकीरत सिंह जी, रोशन लाल शर्मा जी, श्यामलाल कपूर जी, राकेश बजाज जी, अशोक गोयल जी, अमृत लाल कपूर जी, संजीव गुप्ता जी, ये सभी मिल करके ये सेवा कार्यक्रम में अपना योगदान दे रहे हैं। सरला चोपड़ा जी। बहुत मैं माफ़ी चाहना, अज माँ दिवस है, माँ का दिन। अज मेरिया बहुत सारिया मावां भैणां अज बैठिया ने इत्थे, मदर डे है। मदर डे ते भी मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ देना, क्योंकि माँ दिवस बड़ा सोच समझ के किसी ने माँ दिवस मनाया, मदर डे मनाया, क्योंकि मदर वो महान शख्सियत है, माँ वो महान शख्सियत है, और जिहदा कोई बदल नहीं हैगा। और होर रिश्ते आपां नूं बहुत मिल जाणगे, पर माँ जिहड़ी है, और माँ दा बदल कोई नहीं। और ऋषियां मुनियां ने बहुत कुछ लिखिया माँ के संबंध च। माँ जिहा कणछावां बूटा मैनूं किधर नज़र ना आवे, माँ तो शाहदारी लैके रब ने स्वर्ग बनाए। कुल दुनिया के बूटे जड़ सुक्या सुक जावन, माँ जिहा बूटा पत्तियां सुकर मर जावे। कहण दा मतलब है माँ ऐसी शख्सियत है, महान शख्सियत है, बच्चे दे कंडा चुभजे ते दर्द माँ नूं हुंदा है। और किसी लेखे लिखिया माँ की पूजा रब की पूजा। और माँ जो घर च बैठी है तो समझ लो रब घर च बैठा वा। जिसने माँ की पूजा कर ली उन्हें समझ लो सारे धाम मिल के घूम ले। तो ऐसी माँ का दिवस है, माँ दिवस है, अज मदर डे है। और माँ वो महान शख्सियत है, और जेड़े अपना भुखा रह के पेट भुखा रख के ते अपने बच्चों नूं पालदी है, आप गिले ते सौ के बच्चों नूं सुक्के ते सवाउंदी है। तो वो दिवस अज मैं इस माँ दिवस ते मदर डे ते
अभी आप देख रहे थे 333वें राशन वितरण समारोह को जो ज्ञान स्थल मंदिर के प्रांगण में आयोजित किया गया। आज के इस कार्यक्रम में जहां पर एक दिव्यांग को ट्राईसाइकिल भेंट किया गया, वहीं पर 400 के लगभग जरूरतमंद परिवारों को घरेलू उपयोग की राशन सामग्री बांटी गई। साथ ही जो बच्चे अप्रैल महीने में पाठ्य सामग्री नहीं प्राप्त कर सके, उनको इस महीने पाठ्य सामग्री बांटी गई। और सतलुज क्लब की कार्यकारी टीम का विशेष तौर से मंदिर कमेटी की तरफ से सम्मान किया गया। और आज मदर डे के ऊपर आए हुए सभी मेहमानों ने माँ के इस संसार में होने की सार्थकता के बारे में अपनी बात कही और ज्ञान स्थल मंदिर के समाज सेवा के कार्यों की सराहना करते हुए इस संस्था के सिरमौर स्वर्गीय श्री जगदीश बजाज जी को याद किया और यहाँ पर स्थापित अमर शहीद लाला जगत नारायण की प्रतिमा पर भी दुशाला भेंट करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देखने और सुनने वाले सभी भक्तों से अपील करूंगा कि आप भी इस नेक यज्ञ में अपनी आहुति डालकर पुण्य लाभ कमाएं। आप लोगों का आने वाला समय मंगलमय हो, इसी दुआ के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय श्री राम। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ 333ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਗਣ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਬਵੇਜਾ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਸਤਲੁਜ ਕਲੱਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਸਭਾ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਲਮय ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।